Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you joining us today. I'm Archita Mohanty. And I'm Ankita Datta, and together we'll be your host for Tech Brew Season 3, Episode 1. Thank you for joining us today. We know there are countless videos and reels and notification competing for your attention, and we are glad that you chose to spend this time with us. So, what is Tech Brew? The Tech Brew is an exciting tech talk and interactive learning series by the Coding Ninjas ITR, designed to bridge the gap between students and industry experts. It's not just another lecture series, it's a fun, engaging, and knowledge packed experience where learning meets networking. What will you exactly learn? Throughout this program, you will have the opportunity to learn directly from the professionals working at some of the leading companies, giving you valuable real world insights and practical knowledge. You'll also take part in hands on activities, interactive quizzes, and engaging challenges designed to help you apply what you learn and build your skills with confidence. Most importantly, you will get the chance to interact with the industry experts and ask your questions and receive career guidance that goes beyond textbooks, helping you prepare for your future with greater clarity and confidence. And we hope that by the end of today's session, you'll leave with new ideas, practical insights, and maybe even a little inspiration for your own tech journey. It's my pleasure to introduce today's guest speaker. Our speaker is currently a software engineer third at Morgan Stanley with previous experience at Mercedes-Benz, R&D, India and Temenos. A graduate from SUA University with a BTech in computer science. They have worked on scalable automation systems, real-time tracking solutions, and high-performance financial the common mistakes students make during placements, and how AI is reshaping the hiring process. Our speaker will then share a practical roadmap to crack placements, followed by an Q&A session. We will conclude with a feedback form and a thank you note. So let's get started. Without taking any more of your time, I would like to invite Mr. Pratyush Sinha to take over and share his valuable insights with us. Over to you, sir. Start with the first thing. I mean, what's the company actually looks in 2026, right? So the points is mentioned over here, right? So it's more about, I mean, we think of we whatever we think, right? We think in solving any problem, right? See, it's a law of nature, right? We are also here. Why we are here? There must be some cause, right? We are solving some cause. That's why we are here. We are gathered here and thing. The same thing is from everywhere, right? So if company they also do business, at the end they do business, they solve some kind of problem, and for that they charge their commission, money, or anything, right? So it's always like solving someone else problem, and then you get commission, you get paid out of that, right? So the first thing is that we always tend to find, always whatever you're doing right now, right? So you're doing BTech, right? Why you are doing BTech? The first question, why you're doing BTech, right? So there are many set of questions. So ask all this question. You must be very much clear that what you are doing, right? Because you never know what interviewer is going to ask you in the interview. He might ask you just a simple question that why did you did BTech? Just you need to explain him, right? You need to justify that why. Your parents told that's why you did. Your uncle told that's why you did. Your cousins are doing that's why you did. There could be any reasons, but you need to justify, right? From very beginning that why did you choose BTech? There are n number of courses, right? Why did you choose BTech? Why are you at ITS or university? You need to justify each and everything. You need to have answer of for each and everything. Just forget about the resume, projects, everything as of now. I'm just telling about straight away from your BTech, right? So I mean, see, they don't want, I mean, there is no practical answer for this, right? For this question you don't have any practical answer. What they want is kind of a genuine response, a legitimate response, and you they must know that you have taken some decision, you have reason for that, why you have taken that decision. Because moving forward when they hire you in the company, right? So
you are the person who has to take decision at certain point of time, right? That I'll go with this code, I'll not go with this code, right? I'll use this method, not this method. I'll use this design pattern, not this particular design pattern. There could be n number of reasons, and at every point you need to justify why you are choosing that particular thing, right? So I just want ki from very basic you have knowledge that whatever you are doing you must have reason for everything. Okay. Second thing, AI is a productivity tool, right? So now once the AI is getting introduced, right? So earlier it was like there were many hype, right? The AI will eat our jobs and all those kind of stuffs were there in market. But now AI is here. AI will be with us for very long. But the thing is that AI won't replace human. That is very sure. Okay. But AI definitely the people who use AI productively, they will replace the people who is not using AI. That's for sure. That's for sure. If in current market you don't know how to use AI, I'll be very frank with you. Okay, if in current market standard you don't know how to use AI, you will be replaced by someone who knows how to use AI. Because the same thing, see, for I'll tell what story point. Suppose earlier in our sprint, okay, how many of you know about the SDLC sprints and all kind of stuff? You know that the tasks are being divided into particular sprints are nothing but suppose you gave me a task, right? Ki Pratyush, you need to do this particular task, and you gave me a time that this is the time frame in which you need to do the task. Okay. So to be on a very broader perspective, so earlier we were getting the task that was based on, I mean, suppose it's a 10 story pointer, right? Now with all these AI tool, the expectation have rise. It has just doubled. Now it is 20 story pointer because we have those AI over here. Everything now AI is with you, right? So for your learning, use AI. For for most of the thing now, even I mean, it's like, I mean, how do I organize my room? That AI is telling that as well. Okay, but at some point of time, use AI, but very cautiously. Okay, it's not right that it's not correct that every time AI is giving you the correct answer. Okay, just for example, I'm telling in your phone, just type that create an image of CEO. Okay, just type that and see what happens. Okay, so what it will do, just try that, and what it will do is it will draft you an image of a CEO that is wearing suit, tie, and all. Okay, we all know Mark Zuckerberg. We all know the CEO of Nvidia. Do they wear suit and tie? Anyone have seen them any time? But why AI is, when AI will generate the image, sure, try this prompt, right? Ki generate a image of CEO, right? So when or try generate the image of doctor. Okay, so when it will generate the image of doctor, it will put that white color, that coat, and then that stethoscope and that. So have you seen doctor everywhere? They are carrying stethoscope and they are wearing that. It's not right, right? But it is trained on the data. So sometimes AI is trained on the data. The data is biased. Okay, and whatever response AI is giving you, that is based on the data. So always recheck whatever AI is telling you. Okay, it is not prominent that whatever AI is telling is right. Take guidance from AI, but use your thinking as well, right? Ki whether it is correct or not, and re-verify it from various resources. So that's what AI is, a productivity tool. It will increase your productivity if you know efficiently to use it, right? And in today's world, to be very frank, I mean, if you are not using AI, it's very difficult. It's gonna be very difficult because everyone company have already invested some amount in AI, right? Now they want their revenue out of that. They have already invested some amount in the AI. So you must use AI. You must know how to use AI. I'm not asking, see, as a fresher, we don't expect you to very advance in the AI, right? Just create a MCP agent and create a whole agent, and create all, I mean, use as all those source graph and everything, right? We don't want that. But we just want you to be good at prompt, right? If I give you any question, you must be very good at prompt, right? It should not be very generic. At least your prompting should be good. You should get a response very in one or two prompt maximum, right? Because with each prompt it has some cost involved. Okay, so that's what
was my second point, that you guys must know how to use AI currently. Okay, because that's in a recent tech. I mean, in recent tech, everyone expect you to use AI. And see, for the people who are skilled, they have the time for that, right? But the people, you guys are very new to the industry, right? So with you guys, we are like, I mean, see, it's like our parents. If I ask my parents that put a status on WhatsApp, they are very confused. Okay, so it's very difficult to put the status on WhatsApp. But if I ask just my 6-year-old cousin that put a status, he is very good at that. Okay, so same like you guys are very fresh, right? So we want you to whatever new in market now, we want you to be at least up to date on that particular stuff, right? You must know about prompting and all. You must know about some of the AI agents and all. You must know about some of the models and all. You must know some of the difference that they carry, right? Not in brief, but at least you have some idea. You should when you should not be like, okay, this I'm hearing very first time. Okay, it should not be like that. Okay, the third thing is that practice skill and creative project. Okay, so what, see here, I mean, how many students we have? Okay, we have 56 over here, right? So every student will have a project in their resume, right? What we need to find out, see, key, how your project is different from others. Okay, or how impactful is it is. It can be very small or it can be very big, a project different. Okay, so I mean, you must be it's very simple project. Okay, I am not, we are not expecting you to create a very huge project, has a number of integration and all. It can be very simple project. Okay, but we expect you that you must be very thorough about that project. Okay, whatever you mention it over there, you must be very clear. You must be very clear on the business perspective. First thing is that project means you're solving some problem. The problem statement should be very clear, that why you choose this project. Okay, what made you choose this project, what problem you are solving with this project. Okay, what values you are adding with this project. And the main thing is that scalability. See, I'll tell you frankly, my first company, I was working as Temenos, right? I shift to Mercedes, then I shift to Morgan, right? So when I shift to Temenos from Mercedes, Temenos, the company gets shut down because of me? No, right? I switched from Mercedes to Morgan. This Mercedes shut down? No, because see, they will always have your replacement. They will always have your replacement. Okay, but what they think of is whatever you are doing right now, it must be scalable enough. That's the main thing that we think when we are coding in the corporate world, right? It must be scalable and it must be very simple enough that I mean, a person who is very new to that project, after reading that person can also understand. And how that can be possible? Proper logging. When you are also making project, put very descriptive logs, right? That even a variable is there, then why you have declared this variable? And the name of the variable matters a lot, right? When an interviewer asks you to write any coding problem, just keep in mind that the naming convention is also very important. Let x equal to y, let y equal to 5, let n equal to 10, and at last we also forgot that what was n. Okay, so use variables. Whatever you are writing, it must be very descriptive. Okay, I mean, first try whatever you're writing, other person can understand that with the logs and the variable and the naming convention. He must understand that what you are trying to achieve with that. Okay, so these are some of the very main thing, that your project, it can be simple enough, but you must be very thorough about your project. Your idea must be very clear, that why you have chosen this project, what problem your project is solving, what values your project are adding, right? So all these things should be very much clear. And then we will land on the questions on project, right? That what tech stack have you used? Again, why that tech stack? Right? Because we have in language also, we have Java, Python, Ruby, Rail. There are n number of things. If you choose Java, why Java? Right? If you choose Python, why Python? If you choose C++, why C++? You need to have answers on all that perspective, right? Even the small thing, you need to have the answers. I'm not telling you to guess. See, we will go for an interview, we'll practice 500 lead code questions. That's the uncertain part, right? What we expect the interviewer will ask, right? But the most
most certain part is that what you are mentioning in your resume. That is the most certain part that you will get a question from that. That is for 100% sure. Okay. So whatever you are mentioning, you must be thorough about each point you are mentioning right over there. Okay. Practicing 20-30 lead question a day, and then second day I'm very bored. It's very boring. Let's do it next day. Let's do it next day and all. See, if you have consistency now, then consistency build confidence. Okay. And that confidence will crack your job. Okay. And if you have that, I mean, see, if you just solve 20 lead code question before an interview, so when you appear for the interview, your mind is full of that 20 interview question. It cannot think of some other approach. You mostly will be stuck in that 20, and you will be connecting that question with all those 20s that you have solved. And it may not be the case, right? It may not be the case that that question has some part from that 20 interview questions that you have solved previously. Okay. So just solve one or two question, and then you should be consistent enough, right? Every day that one or two question, every day that one or two question, just one or two question, or just the one question also will work. But consistency matter, right? Every day you need to solve. So what happened now, when you start solving the problem every day, that when you remember something, right, when you memorize something, then that is in your active mind. Okay. And when you do it in a consistency level, then that goes to your subconscious mind. Okay. So once you get your question now, then what happens? See, I'll tell you frankly, if you get any question in the interview, so once we get any question, right? So suppose it's a DP and it's a backtracking, all those things are there in the question. We have question like that, right? And it's a half an hour interview, but you know that this question required 1 hour to solve, right? So in that, interviewer is not checking are you able to solve that problem or not. We know that you guys will, it will be very difficult you to solve a problem that will take 1 hour and you have half an hour. Okay. We are just seeing that your approach, how you are calm at that particular position, and what approach you are taking at that particular position. It's like, I mean, it's like thinking out loud. Okay. So whenever you are solving a problem now, when you have something in mind, just speak up that, yeah, I am thinking in this particular direction. Okay. So my approach is this. May or may not be. See, correct and wrong, that is a different matter, right? But at least you should speak up, right? Okay, in my mind, or if you will be very silent and will just be coding, then able to complete that question, or either it's like that you will not, and at last 5 minutes you'll you'll try to explain everything, but that didn't work. Okay. So from very first line, just try communicating with the interviewer. Okay. Just try having a conversation. Interview is most about the communication, right? How you communicate. Okay. It's like you are trying to solve a problem. Okay. Just try that. Okay, in my mind I have this approach. Okay, this approach will work. Okay, this approach cannot be work. Okay. So like that, if you start discussing now, you'll get some small, if it is in right direction, you'll get some hint in that direction. And he also know that, yeah, you have that analytical thinking mind. Okay. You'll able to solve that problem. That's what we want, because once you are hired, it is never gonna be same, right? If I ask you a DP problem, if I ask you a multi-threading problem, and when you are get hired, it's very less chance that I'll ask you to work on a DP, because it's very difficult, right? Because when you work, we want you to write as simple code that everyone can understand that, right? Everyone can understand. Okay. So it's more about how you communicate with the interviewer. Okay. And how you share your thought. Okay. The last part is communication skill. I have already talked about it, that that is one of the most important skill, and that it never matters. Okay. See, अभी तक मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, right? I can talk in हिंदी, right? इसमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. इट्स कंप्लीटली फाइन. अगर मैं हिंदी में बात करूं, मैं किसी भी लैंग्वेज में बात करूं, लैंग्वेज इज जस्ट अ वे टू मेक, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं. ठीक है. इट्स जस्ट दैट. मेरा काम है, लैंग्वेज का काम है, मैंने जो बोला आपको वो चीज समझ में आ गई, राइट? बट क्या बोला, दैट इज ऑन मी, राइट? सो अगर इफ यू थिंक कि आप किसी भी चीज, होती है, व्हेन आई वाज आल्सो इन फोर्थ ईयर ना, तो दिक्कत होती थी मेरे को भी इंग्लिश में समझाने में, इंटरव्यूअर को दिक्कत होती थी, मैं स्टक करता था, आई वाज लैक ऑफ वर्ड्स, मेरे को समझ में नहीं आते थे क्या वर्ड्स यूज करूं. तो
तो वहां पे ना यू जस्ट पोलाइटली आस्क सर इफ यू आर कंफर्टेबल कैन वी स्विच टू हिंदी, इफ ही सेज या आई एम वेरी कंफर्टेबल, आप उनको ना एकदम आराम से एक्सप्लेन करो चीजें हिंदी में, ठीक है, कि सर मेरा ये अप्रोच है, मैं ये सोच रहा हूँ, ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे करते हैं, मेरा ऐसा सोचना है कि विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलवेज फर्स्ट थिंक अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नेवर ऑप्टिमाइजिंग अ प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन कम नेक्स्ट, ठीक है। पहले तो कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करना है, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व, कोई भी ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व, सॉल्व जब हो जाएगा उसके बाद विल टॉक अप्रोचेस इन विच वी कैन ऑप्टिमाइज दैट प्रॉब्लम, ठीक है। सही है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स? But yeah, before we move ahead, I would like to know from all of you, how many of you actually think a high CGPA alone is enough to get placed? React with a thumbs up. Okay, Ankit Parida, okay. Okay. Some say CGPA matters the most, while others believe skills are everything. Instead of guessing, let's hear from you. Okay, okay. So see, to be very frank, CGPA will make your parents very happy. It will make your parents very happy. That's mine. Okay. For me also, my parents were very happy when I was getting good CGPA. When it was low, they was very angry. But skill make your HR happy. Okay. When you have skill, na, it makes your HR very happy. Okay. That is a different thing that after interview, what all happen. But the first thing is that your skills makes your HR very happy. So it's on you, right? वी नीड टू एक ब्रिज बना के चलना है, ठीक है। पेरेंट्स को भी खुश करके रखना है, एचआर को भी खुश करके रखना है, राइट। तो हमें एक मीडियम सीजीपीए भी अच्छी होनी चाहिए, इतनी सीजीपीए होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो भी कंपनी आ रही है ना, क्योंकि अभी क्या है ना कि आई एम नॉट श्योर, बट मेरे टाइम पे था कि अराउंड 7.5 और 8 समथिंग था, बहुत सारे कंपनी का वो क्राइटेरिया था कि इससे ऊपर आएगा तभी हम बैठने देंगे, ठीक है। तो इतना ले करके चलना है ना कि एटलीस्ट हमें ना ज्यादा से ज्यादा कंपनी में बैठने का मौका मिले, ठीक है। तो वो चीज लेकर के चलना है हमें हमें इतना भी नहीं, क्योंकि देखो सीजीपीए विल, आपने जो पढ़ा बहुत अच्छी बात है, आप सीजीपीए अच्छी ला रहे हो, दैट इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम स्किल पे भी काम करना है। स्किल मीन्स व्हाट? सी करेंटली I'll give you a driving. I just ask कि आपको ड्राइविंग आती है, यू टेल कि हाँ मेरे को ड्राइविंग आती है, दैट्स फाइन, आपको ड्राइविंग आती है। मेन थिंग इज कि अब मैं आपको बैंगलोर में वेडनेसडे इवनिंग को, if you not heard of, you'll all come to Bangalore Wednesday evening, I'll ask you to drive from Marathalli to Silk Board, ठीक है। then I'll get to know your skill, right, कि तब skill काम आएगी। you know driving, but the actual world में when I give you a car and I'll ask you to drive in that road that is full of traffic and the Swiggy Zomato guy, they are entering from everywhere, we all face this, right? so तब skill काम आएगी actual में, right? so that is, you know driving, you have learned driving, that is fine, but जब तक आप उसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में प्रैक्टिस नहीं करोगे, you won't get skill. It's as simple as आपने वी ऑल सी, आप सबको है, ठीक है, हमें जिम की वीडियो देखनी है, हमें जिम की वीडियो देखते हैं, हम डेली जिम की वीडियो देखते हैं, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सिक्स पैक एब्स हमने बना करके रखी है, राइट, एवरीवन वांट्स दैट, करेक्ट। बट जिम की वीडियो देखने से यू विल हैव दैट टेक्निकल नॉलेज कि ओके सो पुलअप्स में हमें ये शेप रखना है, ओके हमें पुश पुल करना है, हर दिन चेंज करना है, राइट। सो ऑल दोस टेक्निकल डिटेल्स, हमें कितने रेप्स लगाने हैं, ओके, सो सारे टेक्निकल डिटेल्स यू विल गेट टू नो। बट बॉडी तो तभी बनेगी जब एक्चुअल जिम हिट करोगे, जब एक्सरसाइज करोगे। कोडिंग स्किल्स के साथ साथ लाइक इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस वगैरह भी तो जरूरी होता है ना, आई गेस। सी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। द कोडिंग स्किल अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इट्स लाइक अ ड्राइविंग। आई आस्क यू, देखो आपको एक ड्राइवर को हायर करना है, तो आप उससे पहला सवाल क्या पूछोगे कि यू नो ड्राइविंग? आपको एक ड्राइवर को ही हायर करना है यार, ये प्री रिक्विजिट है कि हाँ ड्राइवर को हायर कर रहे हो, जो बंदा आया उसको ड्राइविंग आती है, आपको उसकी तो स्किल आती को है। चेक करना है। मैं उसको ऑफ रोड दे दूंगा ड्राइविंग, मैं उसको एक पहाड़ पे बोलूंगा गाड़ी चढ़ा, ठीक है, दैट्स ऑन मी कि मैं उसको कैसे जज कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एक ड्राइविंग के जॉब के लिए आए हो, आपको ड्राइविंग आती, दैट इज अ प्री रिक्विजिट। सो दैट्स सेम ओवर हियर। अगर आप आज के टाइम पे यू आर फ्रॉम अ सीएससी बैकग्राउंड, सो दैट्स अ प्री रिक्विजिट, आपका फर्स्ट राउंड ही है, दैट आपका फर्स्ट राउंड ही है। आप पहले अगर आप कोडिंग नहीं क्लियर करोगे, बाद में योर प्रोजेक्ट विल कम, बाद में योर रिज्यूमे विल कम,
straight away you'll gone from the first round. So that's a very prerequisite. For the interviews मैं बोल रहा था, like we need to be confident, like because some people are like they have good coding skills but कैमरा के सामने या इंटरव्यू के सामने वो नर्वस हो जाते हैं. एग्जैक्टली तो वो सबके साथ होता है, बट वो सॉल्व कैसे होगा यार? देखो इतने लोग हैं, ट्राई टू टेक योर मॉक इंटरव्यूज, राइट? एक बंदा, बट हाँ जब इंटरव्यू लो तो फिर वो दोस्त नहीं, दोस्त वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अबे यार ऐसा नहीं, मैं बता दूंगा यार, फिर ऐसा नहीं यार तू बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है यार, ये दिस इज नॉट द वे. इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू, और आपको अगले को पूरा ड्रिल डाउन करना है, ठीक है? आपको ऐसा पूछना है कि वो बंदा शांत ही हो जाए, उसके पास कोई जवाब ना हो. एंड देन I'll tell you some of the thing. I'll tell you about the stress interview also. There are some of the stress. I have also appeared for the interview that is a stress interview. ठीक है? तो वहां पे विल चेक कि आपका स्ट्रेस हैंडल करने का क्या है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन में कोड लिखते हो ना, जैसे हमारी भी रिलीज थी आज आज सुबह में हमारी रिलीज हुई, राइट? जब रिलीज होती है और जब प्रोडक्शन में कोड जाता है, और जब अब आप ही सोचो, आप अपने कितना बुरा लगता है कि आपने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, सबको पता आईफोन 17 प्रो 14 9 999 में आने वाला है, हम सब बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है? कितना लगता है कि अरे यार ऑर्डर हो गया, हाँ कंफर्म हो गया, ऑर्डर कंफर्म. 1 घंटे के बाद विल गेट टू नो ऑर्डर कैंसिल. कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है. एंड देन कितना फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार बुक तो हो गया था, क्यों कैंसिल हुआ, मैं केस कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी चीजें. और ये होता क्यों है कि समवेयर वी हैव अ लैग, राइट? कि हमें उसको प्रॉपर लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ रखना है कि जब वी नो द ट्रैफिक, कि कितनी ट्रैफिक हमारे पास अगर हमारे पास ऑब्वियसली बात है, अरे सब हमारे घर घर के सिस्टम से गया है. पार्टी में अगर हम खाना बनवा रहे हैं, राइट? हमने भंडारा रखवाया है, हमने अपने जो हमारा कैटरर है उसको हम बोलेंगे 100 आदमी का खाना, वो ऑब्वियसली 120 आदमी का खाना बनाएगा. हम उसको 100 बोलेंगे, वो 120 का बनाएगा, वो 20 मार्जिन लेके चलेगा. द सेम चीज इन इंडस्ट्री, ठीक है? मैं गेस मारता हूँ कि हमारे पास अराउंड कॉन्करेंट 1 CR यूजर्स होंगे. तो जब मैं लोड टेस्टिंग करूंगा तो मैं 1.5 पे टेस्ट करूंगा, ठीक है? तब मैं लॉकिंग देखूंगा कि 1.5 करोड़ कंज्यूमर ऐसा एक परफॉर्म कर रहा है. साथ एक टाइम पे उस पर्टिकुलर बटन को हिट कर रहे हैं. आई सी माई लोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि मेरा लोड डिवाइड कैसे हो रहा है सारे नोड्स में, ठीक है? उसके बाद अगर मेरा प्रोडक्ट, अगर एक जन ऑलरेडी पेमेंट पेज पे है तो उसने लॉक एक्वायर करके रखा, उसका पेमेंट कैंसिल हुआ, उसका लॉक रिलीज होना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट, राइट? सो Right, right. देयर आर, और ये सब कौन करता है? दीज ऑल, मतलब आप ही लोग करोगे. वी विल ओनली डू, ऑल यू गाइस इन मूविंग फॉरवर्ड. कोई फ्लिपकार्ट में जाएगा, कोई अमेजोन में जाएगा, कोई मॉर्गन में आएगा, कोई गोल्डमैन में जाएगा. एवरी वन ऑफ अस विल बी देयर इन सम ऑफ द कंपनी, राइट? एंड वी ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. हमें उसको आंसर करना पड़ेगा, राइट? जब चीजें गड़बड़ होती है ना, जिस हिसाब से गड़बड़ होती है ना, तब हमें डेव टीम को बैठाया जाता है, ठीक है, मीटिंग रूम में. एंड देन देयर आर बिजनेस पीपल, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो बिजनेस कर रहा है, इससे उनका रेपुटेशन खराब होता है. वी आर गेटिंग पेड बेस्ड ऑन दैट. एंड देन दे मेक यू सिट एंड देन यू नीड टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों हुआ, विद द रूट कॉज. आपको रूट कॉज लेके जाना होता है, आपको बताना होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है? क्या कमी थी कि जिसके वजह से ये हुआ. Again, it's never about pinpointing at someone, but as a collective team we need to take the responsibility for that. तो again, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी बात है. आप जो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है? जब आप खुद से अपनी कोड को लिखोगे ना, और आपको कोई अगर बोल दिया कि यार ये कोड खराब है, ठीक है, तो आपको बुरा लगता है कि यार मेरा लिखा हुआ कोड को कैसे कोई बोल सकता है खराब है. यू विल ट्राई, यू वी नॉट ट्राई टू फाइट विद दैट पर्सन, वी ट्राई टू गेट कि अच्छा क्या दिक्कत है इसमें, मेरे को बताओ, आई करेक्ट इट. ये बहुत ही अच्छा लगता है ना कि देयर इज अ प्रोसेस, कि जब आप अपने कोड करते हो एंड व्हेन यू गिव इट फॉर टेस्टिंग, और जब जब टेस्टर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, एंड फाइनली इट इज फ्रॉम टेस्टिंग इट मूव्स टू प्रोडक्शन, तब जो डेवलपर होता है ना, वो इतना खुश होता है कि मैंने जो कोड लिखा, क्योंकि again that repeated thing and everything is getting tracked in corporate, ठीक है? आपने कोड लिखा, आपने सारा टेस्ट केस नहीं कंसीडर किया, टेस्टिंग में वो फंसा, टेस्टर ने बग रेस किया, फिर आपके पास आया, आपने फिर उसको फिक्स किया, आपने फिर उसको पुश किया. ये टाइम लग रही है ना. आपने कितना एस्टिमेट दिया था? 5 दिन का. जब 5 दिन के बाद वो बग रेस हो रहा है, दिन बढ़ रहा है, हु विल कॉम्पनसेट? यू विल कॉम्पनसेट, ठीक है? आपको वो चीज कॉम्पनसेट करनी पड़ती है. तो वेन एवर वी आर कोडिंग वी नीड टू थिंक ऑफ all the possible scenario. आपको नहीं पता है, no one knows everything. You connect to people, you try to get the answer from them, ठीक है? कि इसका और क्या क्या सिनेरियो हो सकता है that we might miss over here.
भैया। of us we know about ATS? ATS स्कोर के बारे में पता है? हाँ। पता है, वेरी गुड। Yes, भैया। ठीक है, जिन लोगों को पता है बहुत ही अच्छी बात है, और गाइस आर वेरी अप टू डेट। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, ATS स्कोर इज नथिंग बट बेस्ड ऑन जो भी, मान लो मेरा एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट स्किल डाली हुई है, आपका रिज्यूमे है, आपके रिज्यूमे में भी स्किल है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्किल वो ना आपके रिज्यूमे को एक स्कोर देता है, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ दैट। तो आइडियली ATS स्कोर जब आप चेक करोगे ना, जैसे अपना प्रोफाइल डालो, डिटेल डालो और ATS स्कोर चेक करो ना, तो पहली चीज कि ATS स्कोर जितना हाई होगा ना, प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा रिज्यूमे सिलेक्शन का। क्योंकि आजकल सबने ना ATS डाल के रखा है आपने, डिटेल क्योंकि डाल के रखो। आप भी देखो ना यार, फ्रैंकली इफ आई मेक यू एन HR और दिन भर में लिंक्डइन तो स्पैम होता ही होता है, यू थिंक कि एक दिन में दे आर गेटिंग अराउंड lakhs ऑफ resumes फॉर अ सिंगल पोजीशन। फॉर देम ऑल्सो इट इज इम्पॉसिबल कि वो सारे रिज्यूमे को मैनुअली चेक करे बैठ करके, ठीक है। सो टू मेक देयर वर्क इजी दे हैव अडॉप्टेड समथिंग लाइक दैट कि ATS फिल्टर के बाद ये सारे रिज्यूमे हम उनके पास आए। ATS के बाद जितने रिज्यूमे आते हैं ना, उस पे भी वो मैच चलाते हैं कि मैचिंग परसेंटेज कितना है, ठीक है। स्टिल उनके पास कुछ एजेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड इज HR, आई नो, मैंने उससे डायरेक्टली बिफोर दिस सेशन आई वाज टॉकिंग टू हर कि ये चीजें कैसे काम करती है एंड ऑल, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। तो उसके बाद ना दे आर गेटिंग कि हाँ, उसके बाद जो रिज्यूमे होते हैं ना, दैट वो पिन पॉइंट करते हैं, वो रिज्यूमे वो देखते पढ़ते, अगर उनको वो जेन्युइन लगता है देन दे सेंड इट टू हायरिंग मैनेजर। उसके बाद आपका रिज्यूमे हायरिंग मैनेजर को जाता है, देन हायरिंग मैनेजर डिसाइड्स कि इसमें से किस किस का इंटरव्यू लेना है। ओके, ओके। सो पहली, टू आंसर योर क्वेश्चन द फर्स्ट थिंग इज दैट ATS स्कोर अपने रिज्यूमे का सुधारो। दूसरा क्या है कि मैचिंग स्कोर सुधारो। कोई भी स्किल उठाओ, उस स्किल में, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जितने स्किल है ना, कोशिश करो आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड मैच बढ़े, ठीक है। मैं सी आई एम नॉट टेलिंग कि पहले क्या होता है, बट एटलीस्ट ना ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहली बात तो है सिलेक्शन। सेलेक्ट हो गया, उसके बाद HR से कॉल आया, फाइन, दैट्स फाइन कि आपको वो स्किल्स आपके पास नहीं है, आपको दिक्कत हो रहा है, आपने HR को स्ट्रेट अवे बोल दिया नहीं है, या फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में गए, ठीक है, ऑटोमेटिक यू विल बी रिजेक्टेड, दैट्स फाइन। बट एटलीस्ट आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट हो रही है, यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये ट्रिक है, इससे मेरी रिज्यूमे सेलेक्ट हो रही है, हम्म। ठीक है। आप अपने स्किल पे हो, रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं हो रही, तो क्या है, आपको अगर वो स्किल पे अगर आपकी रिज्यूमे सेलेक्ट हो रही है तो क्या बात है यार, एक यूडेमी कोर्स लो, थोड़ा उस स्किल के बारे में पढ़ लो, इंटरव्यूअर को बोल दो कि मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं सीख जाऊंगा। वी कोई इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सब कुछ आता है, बट वी जस्ट वांट कि आप सीखना चाहते हो, आप कर हाँ। चाहते हो। आप जो है इसी पे कि नहीं कि मेरे को जो आता है यही आता है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतने पैसे में इतना ही होगा, ठीक है। ये वी डोंट वांट दिस, राइट। बस वी वांट कि आप काम, बस जो हम दे रहे हैं नहीं आता बट आप कर लोगे, वो करने वाला जो एटीट्यूड होता है ना, कि हाँ मेरे को आता नहीं है बट मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा के आई डू देख इट, लूंगा। सीख लूंगा, कर लूंगा। तो ये वाला एटीट्यूड बहुत काम आता है इंटरव्यू में, ठीक है। हाँ भैया। रहे हो ना, तो आप हमेशा वैसे स्किल सेट को पकड़ोगे जो मैक्सिमम कंपनीज यूज करती है। जैसे कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ा, कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ा, DSA पकड़ा, ठीक है। लेकिन जब डेप्थ की बात आती है, जब मान लो अगर मॉर्गन आ रही है आपकी कंपनी में, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप मॉर्गन के बारे में सर्च करोगे, उसका इंटरव्यू पैटर्न सर्च करोगे, उसके जो बाकी उसके चीजें हैं कि उसमें के राउंड्स कितने होते हैं, हर एक राउंड्स में क्या क्या पूछते हैं, डिजाइन क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, दैट इज अबाउट डेप्थ। तो जब आपकी कोई भी कंपनी आएगी तो इट्स ऑलवेज अबाउट डेप्थ, आप उस कंपनी स्पेसिफिक प्रिपेयर करोगे। बट जब वो कंपनी का हो गया, देन अगेन यू विल स्विच बैक टू रेंज, ठीक है। तब अगेन आप अपने रेंज पे जाकर के चीजों को ध्यान दोगे, तब जेनरिक आ जाओगे, कोई भी एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बट जब कोई कंपनी आ रही है ना, तो इन लीड कोड, इन गिटहब वी हैव अ ऑप्शन कंपनी फिल्टर। आप वहां पे ना उस कंपनी का फिल्टर डालोगे ना, तो प्रीवियसली जितना उस कंपनी ने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा ना, आपको उस टाइप का क्वेश्चन वहां मिलेगा, ठीक है। और इंटरव्यू लेना भी एक बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। दिन भर अपना काम करने के बाद ना, किसी को ही जितना देना मुश्किल है ना, उतना लेना ही मुश्किल है। मैंने दोनों किया है, दिया भी है, लिया भी है, ठीक है। जितना इंटरव्यू देना एग्जॉस्टिंग होता है, उतना ही इंटरव्यू लेना भी एग्जॉस्टिंग होता है। ओके, सो कितने बार ऐसा होता है ना, वो लक की भी बात है कि दे हैव अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कि जो वो पूछते हैं, एंड दे विल लाइक कि ठीक है ले भाई, यही इसी में से कुछ कुछ पूछ ले, तेरे को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो उस समय आपका लक काम करता है, बट नॉट ऑलवेज। ये तो इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर डिपेंड करती है कि उसका मूड क्या है, उसका कभी कभी दैट कंप्लीटली चेंज, वो आपके रिज्यूमे में ही डिग डाउन कर जाता है दैट
अगेन आई टेल इन लास्ट कि वो आपके ही लिए अच्छा होता है, ठीक है। और कभी वो उसी सेट ऑफ क्वेश्चन से आ जाता है जो कि आपने प्रिपेयर किया उस कंपनी के लिए, ठीक है। कोई एंड नहीं है, बट यू शुड बी वेरी फ्रैंक। आप ना बगल में एक स्टार होता है, आप जब रिज्यूमे में डालोगे ना तो स्टार मार्किंग भी होता है कि आउट ऑफ 5। कितने बार हम पूछते हैं आपने रिज्यूमे में सी प्लस प्लस डाला ना, तो वी आस्क कि ठीक है हाउ व्हाट यू विल रेट योर सेल्फ इन सी प्लस प्लस, तब आप बोलोगे 5। एंड व्हेन अब जब आप 5 बोलोगे तो मेरा माइंडसेट हो जाएगा बंदा ये प्रो है सी प्लस प्लस में। तो फिर मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि भाई पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता हो, मैं पॉइंटर्स में आपको घुमाऊंगा, देन ऑल्सो यू विल गेट टू यू विल आंसर मी। अगर वहां पे आप फंस जाओगे एंड यू टोल्ड मी कि मैंने 5 स्टार रेट करके रखा, वहीं बैड इंप्रेशन चला जाएगा, राइट। बाकी का चीज तो पार्ट में, बट मेरे दिमाग में तो एक इंप्रेशन बन जाएगा कि नहीं बंदा ब्लफ कर रहा है, इसने 5 स्टार बोला है बट वहां गड़बड़ हो रही है। बट अगर आपने वहां 3 डाला है और आपने मेरे को शुरू में ही बताया कि मैंने सी प्लस प्लस में ये पढ़ा है, मैंने कोडिंग के लिए यूज किया, मेरे को पॉइंटर्स नहीं आते, यू आर वेरी ऑन अ सेफ साइड। आपने पहले ही बोल दिया इंटरव्यूअर को कि मेरे को ये नहीं आता है, मेरे से ये सबसे मत पूछो, मेरे को ये पॉइंट आता है, उसमें से मैं पूछूंगा, आप जवाब दोगे, आई एम ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। क्योंकि मेरे को पता है आपने जो पढ़ा वो जवाब दिया, कल को चल के कोई काम आएगी, मैं आपको बोलूंगा कि ये पढ़ लो, आप पढ़ के कर दोगे। क्योंकि नथिंग इज सर्टेन। देखो हम बिजनेस कर रहे हैं, राइट। अगर मेरी एक कंपनी में बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को आज जावा का प्रोजेक्ट आया, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कल को मेरे को क्लाइंट आएगा बोलेगा भाई 2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, पाइथन पे है, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास पाइथन के रिसोर्सेस नहीं है, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं लूंगा। व्हाट शुड आई टेल? नहीं भैया, उनको डेफिनेटली बोलना आई कि टेक द प्रोजेक्ट हाथ से प्रोजेक्ट। चला जाएगा। हाँ प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा, राइट। आई टेल कि नहीं मैं ये प्रोजेक्ट लूंगा, क्यों नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरी टीम है दैट आई एबल विल टू डू लर्न इट, इट। आई विल डू इट। आई हाँ, और मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि देखो पाइथन का हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, 1 मिलियन प्रोजेक्ट है, लेट्स डू इट। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ते हैं, पढ़ के काम करते हैं इसके बारे में। कुछ एक एक्सपर्ट को हायर कर लूंगा, नहीं तो इंडस्ट्री में क्या होता है, मैं एक एक्सपर्ट को बुला करके ट्रेनिंग दिलवा दूंगा, हमारी भी कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग होती है इंडस्ट्री में। कि एक हमने एक्सपर्ट को पकड़ा, उसको पाइथन के एक्सपर्ट को पकड़ के हमने बुलाया, जैसे आपके साथ हमारी सेशन हो रही है ना, सेम हमारी भी सेशन होती है, वहां कभी एक्सपर्ट आते हैं जो हमें जो किसी और टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। अरे पिछले 3 साल में मेरी भी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है, तो दैट इज वेरी अनसर्टेन, बट व्हाट सर्टेन इज ऑलवेज ईगर टू लर्न, ठीक है। कोई भी नई चीज आई, दिस इज जस्ट आई मीन पीस ऑफ कोड, ठीक है। और एट दिस यंग एज जब आप फ्रेशर होते हो ना, और जो भी जब आप इतने हो ना, तो आपका लर्निंग पाथ ना बहुत हाई, मतलब आप बहुत जल्दी कोई चीज को समझते हो। आई विल वेरी फ्रैंक, अगर मेरे को कोई चीज को, कोई नई चीज को, क्योंकि देखो मैं इंडस्ट्री में काम करते करते ना एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है, ठीक है। बट आपके पास ना अभी पूरा ओपन मार्केट है, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी। अगर मैं अभी आपको अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दूं ना, आप मेरे प्रोडक्ट में से कमियां खोज लोगे कि भाई आपके प्रोडक्ट में तो ये नहीं होता है, बट शायद मैं नहीं खोज पाऊं क्योंकि मैं स्टैग्नेंट हो गया हूं उस पे, ठीक है। मेरा दिमाग चल रहा है कि अच्छा नेक्स्ट बिजनेस जो आया है उस पर ये डिलीवर कैसे करेंगे, ये सारा प्रोजेक्ट इस टाइमलाइन में इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। थ्रेड नहीं फेल होना चाहिए, लोड वाला कोई इशू नहीं आना चाहिए, मेरा उस वे में चलेगा। बट हो सकता है कोई चीज मैं मिस कर दूं क्योंकि मैं बहुत दिन से उसी कुएं में हूं, राइट। बट फॉर यू इट्स कंप्लीटली न्यू। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द फ्रेशर इज कि आप ना बहुत ईगर हो हर चीज के लिए, आपको यू विल बी लाइक आप मेरे को कुछ भी दो, मेरे को 1 वीक का टाइम दो, मैं बेसिक चीज तो बता ही दूंगा। लिख के बता आई दूँ। नॉट बी एडवांस, बट मैं बेसिक तो बता दूंगा कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो तो मैं बता दूंगा। ओके। यस भैया। Thank you so much for such an insightful and inspiring. So we have a Q&A session ahead. So let's move on to the Q&A session. We have received several thoughtful through Google Form, and now we will take them one by one. Sir, with your permission, I'll begin with the first question. Sure, let's get on to this that. So the first question is, if you were starting as a second year engineering student today, what roadmap would you actually follow? Long term process है, and that's what build confidence from straight away from second year. I'm not, आप पढ़ाई करो, मस्ती करो, सब करो यार, हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर, एक कोडिंग क्वेश्चन, हाफ एन आवर अ डे, बस आधे घंटे एक दिन का बोल रहा हूँ, बस आधे घंटे निकालो, आराम से कोडिंग क्वेश्चन उठाओ, पैटर्न वाइज कोडिंग क्वेश्चन करो, बट डेली करना है, चीट नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब चीज सी, जावा पाइथन आपको कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा, राइट। आगे चल के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो सारी चीजें आएंगी, बट जो सेकंड ईयर से आप कोडिंग स्टैंडर्ड आप अपने स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आप अपना कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो क्या होगा ना, मेजर कंपनीज में ना आप पहले राउंड के लिए यू आर ऑलरेडी एलिजिबल, ठीक है। आप पहले राउंड, आपका पहला राउंड तो क्लियर होना है, क्योंकि सारी कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी वो पहला राउंड में कोडिंग क्वेश्चन डालती है, राइट। दूसरा है, एक बहुत जरूरी चीज, एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन,
अगर कोई यहाँ करता है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज टेकन वेरी वेरी सीरियसली ऑन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. If you are doing any sort of open source contribution, that is taken very seriously. I'm again repeating. ठीक है, वो बहुत सीरियसली लिया जाता है. मतलब दैट्स व्हाट कि आपका रिज्यूमे पहले ही वो अलग कर देता है. अगर मेरे को दिखा कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इन समथिंग, ठीक है, आपने कुछ एक प्रोजेक्ट में अपना ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, तो पहले ही वो रिज्यूमे मैं पिक करूंगा, क्योंकि वो दिखाता है कि यू आर ईगर टू डू समथिंग, राइट. आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सबको पढ़ाया जाता है, राइट. बट सब तो अगर कोई अच्छी कंपनी आ रही तो सबको लेके नहीं जाएगी ना. दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग. सबको तो लेके नहीं जाएगी, राइट. तो कुछ तो अपने रिज्यूमे में डिफरेंट करना है, हमें कुछ तो डिफरेंट करना है, राइट. तो वो तो सोचना पड़ेगा ना कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरा रिज्यूमे, अगर 50 के साथ मेरा रिज्यूमे जा रहा है तो मेरा रिज्यूमे थोड़ा अलग हो 50 में. सबने सबने जीपीटी यूज करके बनाया है, मैं नॉर्मल वर्ड में अपना रिज्यूमे बना दी. यार एचआर को अलग दिखेगा तो कि बंदे ने वर्ड में लिखा है, उसने खुद से टाइप किया है, उसने एफर्ट डाला है. मैंने वर्ड में दिया, मैंने वर्ड में बना के रिज्यूमे भेज दिया, नॉर्मल, आई एम जस्ट टाइपिंग, ऊपर नाम लिख के अपना फोन नंबर डाल के मैंने भेज दिया. दैट कैन ऑल्सो बी अ डिफरेंट थिंग. वो भी एक अलग बात है आपके रिज्यूमे को पिक करने के लिए. बट आई कैन टेल यू इट इज एज सिंपल एज दैट. बट इट शुड बी डिफरेंट. थोड़ा तो उसको डिफरेंट बनाना पड़ेगा, तभी इट बी स्टैंड आउट. क्योंकि ना एक्सपीरियंस आगे जाएगी ना तो दैट तब स्किल ऐड होती जाएगी. बट फर्स्ट ईयर में ना ऑलमोस्ट क्लब रहती है, सबकी स्किल ऑलमोस्ट सेम होती है. तो थोड़ा तो यू नीड टू प्ले अराउंड, राइट. एंड again I'll talk about the roadmap. The roadmap is from second year, straight away from second year, try practicing the coding question. Most important to become industry ready. See, सबसे पहले तो इंडस्ट्री रेडी में पहला ही वर्ड आता है इंडस्ट्री. ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि आपको घुसना है, उधर घुसना है, द फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो प्री रिक्विजिट, सबसे पहले स्टेशन जाना है तो प्लेटफॉर्म टिकट तो खरीदोगे ना यार. बिना प्लेटफॉर्म टिकट के जाओगे तो फाइन कौन भरेगा? यू ओनली नीड टू, राइट. पहले सबसे पहले ठीक है, इंडस्ट्री रेडी के लिए टेक्नोलॉजी एंड स्किल मैं बताऊंगा, दैट इज फाइन. बट पहले वो स्किल तो सीख लो जिससे तुम वहां तक पहुंच पाओ तुरंत. ठीक है, तो फॉर दैट द मेन थिंग इज दैट सबसे पहले तो व्हाट आई टोल्ड इन माय प्रीवियस एग्जांपल, ड्राइविंग वाली जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि दैट इज योर डीएसए. वी एक्सपेक्ट यू कि आप पहला राउंड क्लियर हो, आपको डीएसए आए. एप्टीट्यूड भी पूछते हैं क्या? आई एम नॉट श्योर, एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं अभी, एप्टीट्यूड भी है ना. तो वही बात है कि द फर्स्ट थिंग इज दैट जो भी एप्टीट्यूड अगर आ रहा है तो एप्टीट्यूड के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है. ठीक है, बस इतना पढ़ना है कि वो क्लियर हो जाए, वो राउंड क्लियर हो जाए. उसके बाद में नहीं मतलब है, बट थोड़ा तो प्रैक्टिस करना है कि वो राउंड क्लियर हो जाए, हमारा पहला राउंड क्लियर हो. सेकंड थिंग इज दैट कोडिंग. कोडिंग में बोल रहा हूँ, कोडिंग इज नॉट अ सिंगल डे टास्क. हर दिन जस्ट हाफ एन आवर, हर दिन हाफ एन आवर से 1 आवर देना है बस, और कुछ नहीं है. सो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. क्या अपने एप्टीट्यूड है, पूछते हैं एप्टीट्यूड, थोड़ा प्रैक्टिस करना है. उसके बाद क्या करना है, कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. जब ये दोनों पार्ट हो गया, यू आर कॉन्फिडेंट इन, पूरा पूरा दिन ये नहीं करना, पूरा दिन बैठ करके कोडिंग नहीं बनानी. कोडिंग 1-2 आवर बैठ करके बनाई. उसके बाद आपका रिज्यूमे को प्रैक्टिस करना है कि रिज्यूमे में जो जो चीज लिखी है उसको हम जस्टिफाई कर पा रहे कि नहीं, जो स्किल्स लिखा है उसके ऊपर हम आंसर कर पा रहे कि नहीं. ठीक है, आफ्टर ये सब कुछ हो गया, देन प्रैक्टिस फॉर मॉक इंटरव्यूज. दोस्तों को बोलो मॉक इंटरव्यूज ले, आप मॉक इंटरव्यूज दो, मॉक इंटरव्यूज लो. लेने से भी बहुत चीज पता चलेगा, राइट. लेने से पता खुद को जज कर पाओगे कि अच्छा मैंने भी यही चीज गड़बड़ की थी, मैं भी ऐसे जवाब दे रहा था. ठीक है, मैं बहुत फास्ट जा रहा था, मैं बहुत स्लो जा रही थी. ये सारी चीजें पता चलेगी व्हेन यू गिव इंटरव्यू एंड व्हेन यू टेक इंटरव्यू. ठीक है, तो ये सारा एक जनरल प्रोसेस है. तो सबसे पहली चीज एप्टीट्यूड और कोडिंग प्रैक्टिस करो कि पहला राउंड क्लियर हो जाए. उसके बाद सेकंड राउंड डोमेन राउंड जो होता है, तो उसके लिए अपना रिज्यूमे प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट अपना प्रैक्टिस करो. लास्ट थिंग इज दैट कम्युनिकेशन के लिए अपना रिज्यूमे यू जस्ट ट्राई कि इंटरव्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरव्यू हो. ओके. So how do you stay focused and consistent, like when there are so many technologies and career paths to choose from? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम टेलिंग यू कि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि 90% ऑफ द केस में आपकी पहली कंपनी में जो आपको जो प्रोफाइल मिलता है ना, आप उसी में प्रोसीड कर जाते हो आगे. ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उसमें गेन होता है. एंड दैट यू नेवर नो कि आपको अपनी पहली कंपनी में क्या प्रोफाइल मिलने वाला है, इफ इट इज अ पूल हायरिंग. ठीक है,
तो जब कंपनी आती है ना तो उनका जेडी चेक करो, मांगो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से, देखो कि उसमें वो क्या क्या उन्होंने डाल के रखा है, उनको क्या चाहिए। दे वांट अ डेवलपर, दे वांट अ टेस्टर, दे वांट अ डेटा पीपल, उनको क्या चाहिए। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट। आप क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्या है ना कि देखो, आप आई सपोज कि यू आर वेरी गुड एट टेस्टिंग, ठीक है, आप टेस्टिंग में, टेस्टिंग इन द सेंस कि आपको ना बड़ा मजा आता है कि आप कोई भी चीज में ना यू इजिली फाउंड फ्लॉज, ठीक है, कि आपको फ्लॉ पिक करने में बड़ा मजा आता है, एंड यू इजिली कैन, दैट इज ऑल्सो ए स्किल, राइट। यू कैन इजिली फाइंड, एंड वी नीड दैट स्किल इन एसडीएलसी। ये दिमाग से निकाल दो कि डेवलपर बड़ा है, टेस्टर बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी वन प्लेज अ वेरी इक्वल रोल ओवर हियर, ठीक है। बट देयर आर प्रोफाइल, जब आप एक बार इंडस्ट्री में जाओगे ना, डेवलपर है, टेस्टर है, डेटा में जाओगे, यही प्रोफाइल होगी ना। आप जाते आपको मैनेजर तो नहीं बना देंगे, राइट। तो आप पहले जेडी से ये चीज पता करो कि ये इस प्रोफाइल के लिए आ रही है कंपनी, ठीक है, कंपनी ने कौन से प्रोफाइल आपको ऑफर किया है। देन थिंक ऑफ कि मैं जब इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है फ्रेशर्स के लिए दे आर वेरी मच नॉर्मल, बट जब आप वो इंटरव्यू हो जाता है एंड इंटरव्यूअर इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो दे विल ऑल्सो आस्क यू कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन। उस समय पूछो उससे, ठीक है, कि ये जो आप हायरिंग कर रहे हो ना, क्या प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग कर रहे हो, क्या टेक स्टैक आप खोज रहे हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, राइट। तो ये सब से ना आपको पता चलेगा कि आप जहाँ जाने वाले हो, और जो टेक्नोलॉजीज वो आपको बताएंगे कि हम ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आपको ये काम एक्सपेक्टेशन है हमारा आपसे। देन थिंक कि आप वहाँ फिट बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। इट्स नॉट कि आप हर जगह फिट बैठ जाओगे। हो सकता है आप एक जगह बहुत एक्सपर्ट हो बट दूसरी जगह आप नहीं हो। तो ये आपको जवाब तभी मिलेगा ना व्हेन यू आस्क क्वेश्चन। जब आप इंटरव्यू, पहली बात तो देखो, इसके लिए आपको इंटरव्यू प्रोसेस पे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। सारे कंपनीज के लिए बैठो, इंटरव्यू प्रोसेस में आगे जाओ, एंड व्हेन इंटरव्यूअर इज इन फ्रंट ऑफ यू, जब उसने आपसे सवाल पूछ लिया, तो आइडियली यू शुड आस्क, ठीक है सर, अभी ये किस प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, टेक स्टैक क्या आप यूज करते हो, कौन सा आईडी यूज करते हो। यू कैन आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस एंड देन यू कैन टेक अवे, और थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करते हैं, देन पता चलता है अच्छा ये कंपनी इस पोजीशन के लिए हायर कर रही है। यू कैन टॉक टू पीपल इन लिंक्डइन कि वो कंपनी काम क्या चीज पे करती है, राइट, किस प्रोजेक्ट के लिए हायर हो रहा है। ये सब चीजें आप कर सकते हो, इससे ना आपको इंसाइट मिल जाएगा पहले कि आपके लिए वो फिजिबल है कि नहीं है, आप वहां पे रहोगे, सस्टेन करोगे, नहीं सस्टेन कर पाओगे। ओके। Kind of projects make a resume stand out to the recruiters? Okay. So, see, I'll first thing what I told is open source contribution. Definitely, it is very, see, recruiters are nothing but an individual, right? So it is very individual specific. Plus the company की कंपनी किस deal के लिए आ रही है। अब कंपनी आ रही है फ्लिपकार्ट, और आपके रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन है कि आपने एक ई मतलब आपने एक ग्रोसरी एप्लीकेशन बना दिया है, एंड टू एंड ग्रोसरी एप्लीकेशन, राइट। तो दैट विल डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि उनको पता है कि फ्लिपकार्ट है तो ऑलमोस्ट उसी डोमेन में काम होगा, और आपने ऑलरेडी एक उसका प्रोटोटाइप बना के रखा है, तो यू नो कि चीजें कैसे काम करती है, राइट। अगर आपके कंपनी में गोल्डमैन सैक्स आ रही है, यू नो दैट इज अ इन्वेस्टमेंट फर्म प्रोजेक्ट, आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो मतलब करंट मार्केट स्टैंडर्ड को देख करके आपका स्टॉक प्रिडिक्शन, एआई यूज करके आपने सिंपली स्टॉक प्रिडिक्शन बनाया, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है, दैट विल डेफिनेटली विल स्टैंड आउट, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने स्टॉक प्रिडिक्शन बना दिया, कंपनी कौन सी आ रही है, फ्लिपकार्ट, डेफिनेटली दैट विल नॉट गोना वर्क दैट, ठीक है। जिसने नॉर्मल लाइब्रेरी एप्लीकेशन बनाया, आपने स्टॉक प्रिडिक्शन बनाया ऑब्वियसली, और स्टॉक प्रिडिक्शन विल गो। बट मेरी बात समझो कि कंपनी अगर आ रही है, उस कंपनी से रिलेट करो, अगर आपका प्रोजेक्ट वहां मैच कर रहा है, देन देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करेगा। बट दैट इज समथिंग दैट इज, आप अब हर एक कंपनी के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट तो नहीं बनाओगे, बट हाँ, हर एक कंपनी के लिए एक रिज्यूमे मत देना। रिमेंबर, 4-5 रिज्यूमे जरूर बना करके रखना, प्लेसमेंट सेल में ये बात करो, 4-5 रिज्यूमे बना करके रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिज्यूमे हर एक कंपनी में नहीं चिपकना चाहिए, वहां पे ना बहुत गड़बड़ होता है, चांसेस बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। जब कंपनी आ रही है, यू आस्क देम कि सर आप मेरे को बोलो, मैं रिज्यूमे सेंड करूंगा, वो रिज्यूमे आप दो कंपनी को, ठीक है। तो वो चीज एकदम क्लियर आउट करना है। दूसरा है कि कुछ ना वही जो एक हॉरिजेंटल होता है देन एक वर्टिकल होता है,
व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, कि जब हम ये लाइन की बात करते हैं, वर्टिकल मतलब एक वर्टिकल हो गया, राइट। तो जो हॉरिजेंटल है ना, ओपन सोर्स इज अ हॉरिजेंटल मतलब पार्ट, ठीक है। इसमें वॉट एवर यू हैव ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, भाई सारी कंपनी इंप्रेस होगी उससे कि यार बंदे ने कुछ किया है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, ही हैज डन समथिंग, राइट। दिस इज नॉट अ वर्टिकल। जो आपने स्टॉक ट्रेडिंग ऐप बनाया है, आपने ग्रोसरी ऐप बनाया है, दैट इज अ वर्टिकल, वो एक वर्टिकल को खुश करेगा, राइट। तो ट्राई फाइंडिंग द हॉरिजेंटल कि जो सारे कंपनी में काम करे, ठीक है। दैट्स व्हाट। Uh, Thank you, Bhaiya, for such an insightful and inspiring session. Your experience and knowledge has given us plenty to think about and explore. On behalf of everyone here, I want to thank you for making time for us today. It was a wonderful session, and thank you once again. And I hope we are feeling a little confident today after this session, understanding what companies really expect in 2026, to learning how AI is actually reshaping hiring and getting a clear roadmap and placements. Like, I think we all have walked away with some beautiful and valuable insights. Absolutely, and the Mentimeter quiz showed that everyone was paying close attention. It was great to see such enthusiastic participation throughout the session. A big thank you to all our participants for being so engaged, asking thoughtful questions, and making this session truly interactive. We hope you found today's discussion both informative and inspiring. And of course, our heartfelt gratitude to Mr. Pratyush Sinha for taking the time to share his experience, practical advice, and industry insights. His guidance has given us a much clearer perspective on how to prepare for placements and build successful careers. A quick reminder before you leave, we have certificates that will be provided to participants, like based on their active participation during the session and successful submission of the feedback form. So if you haven't filled it out yet, we have the QR right here, Achita, QR right here. So if you haven't filled it out yet, please take a moment to do so before exiting. And for the members of Coding Ninjas, there's a specified code you will be provided that you have to fill to get your certificate. Others can leave that column empty. So take a moment and fill the feedback form. अच्छे अच्छे कंपनी में जाओ, और हाँ, कंपनी में जाओ, काम अच्छा करो, ओके। और दूसरी बात है ना कि देखो, कंपनी बड़ी नहीं होती है, वैल्यू आप ऐड करते हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना है यार। कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होती है, द वैल्यू, यू गाइस ऐड द वैल्यू। आप जो प्रोजेक्ट को पकड़ो, आप कोड करते हो, आप उस प्रोजेक्ट को अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो, आप जब उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, यू मेक श्योर पे कोई इशू नहीं आ रहे हैं, राइट। तो हमेशा, एंड दैट्स व्हाट, आप अपने काम को, आप जो भी कर रहे हो ना, उसको आंसरेबल रहो, बस, ठीक है। वॉट एवर यू आर डूइंग डूइंग ऑनेस्टी के साथ चलो, आंसरेबल रहो, ओके। और जो भी कर रहे हो ना, ऑनेस्टी के साथ करो, कोई बात नहीं, फेल होंगे, गड़बड़ होंगे, जैसा प्रतीक्षा ने पूछा, नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होती नहीं होती है यार, हमारी भी नहीं होती है। मैंने भी प्रोडक्शन इशू निकाले, मैंने भी गाली सुनी है, सबके सामने बोल रहा हूँ, मैंने भी गाली सुनी है बैठ के, ठीक है, कि क्या तुमने लिखा ऐसे इशू आए। बट क्या था, मैं सुना तो मैं उसको क्या बोलूंगा, ठीक है आपने मेरे को कैसे बोल दिया, मैं रिजाइन कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, वी विल टेक द फीडबैक, बता, सीखो, उससे सीख के इम्प्रूव करो, बात खत्म, राइट। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड एवरीवन, होप कल सब लोग सही में, जो सोया था भाई सो, अच्छे से सो, आराम करो, दिमाग अच्छा होता है, एंजॉय करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, सब करो, ठीक है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा पढ़ाई भी करना है, ठीक है, केवल एंजॉयमेंट नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब पैसे आते हैं ना, तो जब 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 मंथ, आई विल टेल यू कि जब मंथ एंड में जब पैसे आते हैं ना, तो वो खराब मूड भी अच्छा हो जाता है, ठीक है, कि अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, ठीक है, जब वैसा दिखता है ना, वो जब जब वो 6 डिजिट 7 डिजिट होता है ना, तो इतनी खुशी हो जाती है ना उस दिन की, भाई आज तो मैं दुनिया खरीद लूंगा, ठीक है, जहां मन वहां जा रहा हूँ, जो मन सुखा रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू कि सब लोग वो चीज फील करें, ठीक है। एंड दिस इज वेरी अर्ली कि आप लोग, यू आर एट वेरी गुड 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 प्लेस। ये सेशंस बहुत अच्छी बात है, हमारे तक तो हमारे पास इतना नहीं था। थैंक ऑल ऑफ यू गाइस जिसने भी ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, हमारे पास ये गट्स नहीं था कि हम जा करके लिंक्डइन पे पूछें, सेशन ऑर्गेनाइज करें, बट यू गाइस आर वेरी अहेड, ठीक है।
and technology is very ahead. तो I'll suggest कि बहुत ही अच्छी बात है, and I want wish all of you guys very best of luck for all the upcoming placement session. ठीक है, डरने का नहीं, जो काम किया उस पे बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, और अगर नहीं भी हुआ तो ये समझ लो कि अगर ये नहीं हुआ तो इससे अच्छा होगा। टेंशन नहीं लेने का है यार। अगर यार देखो, मेरा मेरा लिखा हुआ मॉर्गन स्टैनली में मैं काम करता हूँ, इससे पहले मर्सिडीज में काम करता हूँ, ये नहीं लिखा हुआ उससे पहले 10 इंटरव्यू फेल भी किया हूँ। ये नहीं लिखा हुआ है कि 10 इंटरव्यू फेल किया हूं मैं। ठीक है, कितने रिजेक्शंस मेल आए हैं, कितने एचआर को चेस डाउन किया है, कितने इंटरव्यू में गड़बड़ किया है। ठीक है, तो फाइनली ना कि बता रहा हूं ना कि वो एक ईमेल कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर यू दिस पोजीशन और टू हैव यू एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, वो पूरी लाइफ चेंज कर देती है। ठीक है, बस वो एक मेल, राइट। तो बस उसी के पीछे काम करना है, सब कुछ करना है, बट साथ में पढ़ाई भी करना है। ओके, चलो, Thank you happy very much, weekend Bhaiya. everyone. Thank Thank you, you Bhaiya. so much for having me. Yep. The facts So you much, shared Bhaiya. and everything you said, Bhaiya, like it was raw and you gave us so much details that we didn't even know. Like कैसे placements होते हैं, कैसे जाता है review में वगैरह। तो मैंने बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन से अपने को। नहीं, very good. I'm fine. Thank you so much everyone. Thank you, Bhaiya. I think Thank you, Bhaiya. भैया enough. Yep. Good night, Bhaiya. चलो, bye bye. Catch. Bye Good bye. night. Do follow Coding Ninjas 10x on campus on LinkedIn and Instagram using the QR code soon. It was a great session. You all gave us the response and we saw how you reacted in the Mentiq meter. Hope that was also good for you. And you got to learn something from Bhaiya. Stay tuned for the next session too, okay? We have more stuff coming soon. So do follow the LinkedIn page and also our Instagram. Thank you.